Good morning, students. Once again, I am available on YouTube by taking another important topic. In the last class, we have dealt professional development of a teacher in a part 1 section. I have discussed regarding the teacher competencies and area of commitment. Today, in this section, we will deal about the teacher effectiveness, barriers, strategy for improving teacher competencies, and quality of classroom instruction. So I am proceeding. So please pay attention. In a teacher effectiveness, the general meaning of teacher effectiveness is the teacher effectiveness is made up of two familiar words. One is teacher and another is effectiveness. So what is the meaning of a teacher? Teacher is a person who teaches, that is impart knowledge or skills to the learner. शिक्षक कौन है? जो कि हम अपने बच्चों को नॉलेज एजुकेशन प्रदान करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं, स्किल्स प्रदान करते हैं. और इफेक्टिवनेस क्या है? इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग एन इंटेंडेड रिजल्ट. सो इफेक्टिवनेस क्या है? the quality of being successful in producing an intended result. जो आप रिजल्ट देते हैं, कितना हद तक आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, उसकी क्या गुणवत्ता है. इसको क्लब कर दिया जाए, द टीचर इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ टीचर इन कैरिंग आउट इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्पेसिफिक ड्यूटीज. क्या मतलब हुआ कि हम ऐसा मेजर कर सकते हैं कि टीचर कितना सक्सेस किया है ना, अपने जिस संस्थान में जहाँ पढ़ा रहे हैं, जो उसको ड्यूटी मिला है अगर पढ़ाने का, तो उस पढ़ाने में उनकी कितना हद तक वो सक्सेस हुआ है, उस चीज का वो मापना, वो आपके टीचर इफेक्टिवनेस में आता है. That is a measure of success of a teacher in carrying out institutional and other specific duties demanded by the nature of his or her position. Teacher effectiveness include efficacy in strategy of instruction, classroom management, interpersonal relation, evaluation and feedback. सो टीचर इफेक्टिवनेस में बहुत कुछ मिला हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है. क्या क्या? तो स्ट्रैटेजी ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरा क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार का है आपका, तीसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा रहा बच्चों के साथ, आपका मूल्यांकन कैसा रहा, इवैल्यूएशन, और आप किस प्रकार का फीडबैक देते हैं. ये सारी चीज टीचर इफेक्टिवनेस के अंतर्गत आता है. सो टीचर इफेक्टिवनेस refers to individual teacher performance. So टीचर इफेक्टिवनेस कुछ नहीं है, क्या है वो? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत शिक्षक का क्या परफॉर्मेंस रहा. सो इंडिविजुअल टीचर परफॉर्मेंस इज known as teacher effectiveness. I think you have understood. So by seeing this diagram given by the Medley, structure of a teacher effectiveness, in this diagram you are seeing two rows. This is the upper row and this is a second row. So in a first row there is a 5 part. What are the 5 parts? First one is pre-existing teacher characteristics, second was teacher competencies, third one is teacher performance, fourth one is people learning experiences, fifth one is people learning outcomes. In a first row, the teacher learn by in a general teacher education courses, and a second row that there is a teacher training, second one is external context, third one is internal context, and individual people characteristics. We will discuss one by one what the Medley says about the teacher effectiveness. In a first row, if you will see, there is a pre-existing teacher characteristics variable. It means it refers to knowledge
beliefs, ability and personality trait that the teacher possesses on entering into the professional training. जब शिक्षक बीएड में नामांकन लेते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशलों से अवगत कराया जाता है, विभिन्न प्रकार के नॉलेज से, विभिन्न प्रकार के पर्सनैलिटी ट्रेट सिखाए जाते हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल, टीचर इफेक्टिवनेस मुझे समझना है, टीचर किस प्रकार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें ठीक करना है। तो सर्वप्रथम शिक्षक क्या क्या चीज़ से निपुण है, पहला प्री एग्जिस्टिंग टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनके प्रकार नॉलेज है, उनके पास बिलीव्स हैं, उनके पास एबिलिटी है, उनके पास पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। ये सारे चीज टीचर पोजेसेस ऑन एंटरिंग इनटू प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग लेते हैं तो एक एक करके ये सब चीज़ उनको दिया जाता है, सिखाया जाता है। सेकेंड बात उन्होंने क्या है कि टीचर कॉम्पिटेंसी, इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। इट डेजिग्नेट द स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी दैट अ टीचर पोसेसेस। टीचर को क्या क्या रहता है, विभिन्न प्रकार के स्किल्स, कौशल, नॉलेज, ज्ञान और एबिलिटी, दक्षता, चीज से वो निपुण होते हैं। एंड ब्रिंग टू द टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, these are stable characteristics of the teacher that may not change when situation change। तो ये शिक्षक के पास अस्त्र शस्त्र के रूप में ये कौशल और ज्ञान रहते हैं, दक्षता रहते हैं, टीचर कॉम्पिटेंसी उसके पास है। जब तक टीचर के पास टीचिंग कॉम्पिटेंसीज नहीं होंगे तब तक उसमें इफेक्टिवनेस नहीं होगा। इसके लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द टीचिंग कॉम्पिटेंसीज एंड टीचर कमिटमेंट, एंड देन वी आर डीलिंग अबाउट द teacher effectiveness। So how the teacher effectiveness will be improved, इंडिविजुअल कैसे उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो कैसे जांचेगा। तो हम बात कर चुके हैं अभी कि इंडिविजुअल टीचर परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल टीचर परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, टीचर के पास कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, टीचर कॉम्पिटेंसी चाहिए, टीचर के पास परफॉर्मेंस चाहिए। तीसरी बात है, इट मीन्स दैट टीचर क्लासरूम बिहेवियर while teaching inside and outside the classroom। So टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। It is understood in term what the teacher actually does। टीचर का परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है। तीसरी बात है। चौथी बातें हैं pupil learning outcome। It refers to the pupil behavior while teaching is carried out। This of course is not a teacher characteristics but it depends on the effectiveness of the teacher। So people learning experiences क्या निकल के आता है कि of course it's not a teacher characteristic but it depends upon the effectiveness of the teacher। Then fifth बातें यहाँ निकल के आती है people learning outcome। So this can be considered as a direct result of a learning experience of the people। ये कब आएगा, ये कब बेहतर होगा, हमारा क्या उद्देश्य है कि किस प्रकार एक बेहतर शिक्षक अपने विद्यार्थियों का सबसे सर्वोत्तम आउटकम वो देगा। सो पीपल लर्निंग आउटकम consider a direct result of learning experience of the people। When a teacher teaches, he try to provide learning experiences and opportunity to the learner। वो क्या क्या प्रयास करते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटी दे हु इज एक्सपेक्टेड टू अचीव देयर डिजायर लर्निंग आउटकम। सो फाइनली टीचर का परफॉर्मेंस अच्छा या खराब या बीच बीच का किस पे निर्भर करता है, बच्चों के आउटकम पे। ये जो प्रथम रो में जो 5 चीज़ों की चर्चा की गई है, इसमें बाहर से 5 चीज़ें प्रदान की, बाहर से 4 चीज़ें प्रदान की जाती है। आप देखिए, जब शिक्षक को प्री एग्जिस्टिंग टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है तो उसको एक टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा क्या करते हैं, फिर ये कॉम्पिटेंसी बढ़ाया जाता है। फिर ये कॉम्पिटेंसी के बाद देखिएगा टीचर परफॉर्मेंस कब सुधर जाएगा, जब ये एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट आगे इसमें इनपुट किया जाएगा। फिर टीचर परफॉर्मेंस और बेहतर पीपल लर्निंग एक्सपीरियंस कब अच्छा हो जाएगा, जब इंटरनल कॉन्टेक्स्ट इसमें इनपुट दिया जाएगा। आज जो पीपल लर्निंग एक्सपीरियंसेस से हमारा लर्निंग आउटकम अच्छा माना जाएगा कब, जब इंडिविजुअल पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को इनपुट किया जाएगा। तो यहाँ सेकेंड रो की चर्चा यहाँ निहायत आवश्यकता है करना, जिससे आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार और बेहतर आउटकम किया जाता है।
सो सेकेंड रो में कहता है कि टीचर ट्रेनिंग में इट रिफ्लेक्ट्स द एफर्ट of a teacher educator to help a teacher grow in competency, that is to add additional competency to his or her repertoire of particular interest in pre-service preparation. The set of competency acquired by a teacher at the end of pre-service training is a mixture of pre-existing teacher characteristics and knowledge, ability and belief acquired during training. So teacher training में जो सिखाया जाता है उसके साथ साथ ये प्रोवाइड किया जाता है. सेकेंड बात निकल के आती है एक्सटर्नल टीचिंग कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज हियर नाउ एक्सटर्नल टीचिंग कॉन्टेक्स्ट? समझिए. These refers to the characteristics of school where the teacher work that interact with the teacher performance. This may include the physical facilities in the school. What is the external teaching context? Physical facilities in the school. एक अवेलेबिलिटी ऑफ द मीडिया, जो मीडिया उपयोग करेंगे वो मदद करेगा सिखाने में, आउटकम अच्छा होने में. इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स and the relationship between the school and the community. The variable is the cell determine the influence of school personnel to the teacher effectiveness. So externally किस प्रकार आपका और बेहतर आउटकम लाने के लिए मदद करता है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है. तीसरी बातें निकल के आती है internal teaching context. What is now internal teaching context? These variables are characteristics of the class taught by the teacher. जो शिक्षक पढ़ाते हैं that interact with the teacher performance in determining the learning experiences that the people have in the classroom. जो क्लासरूम में शिक्षक जो पढ़ाते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, वो सारी चीज़ें. These include the size of the class, age group, ability, heterogeneity and socio-economic characteristics. सो इंटरनली टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत कुछ हमारा निर्भर करता है आउटकम. किस प्रकार का क्लास है, किस प्रकार का एज ग्रुप है, किस प्रकार का एबिलिटी है बच्चे का, किस सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस सारे निर्भर करेंगे आउटकम पे, बच्चे के आउटकम पे. और चौथी बातें हैं इंडिविजुअल पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कितना भी आप पढ़ा दीजिए, कितना भी बच्चों को सिखा दीजिए, आप बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आउटकम जो है ना कमोबेश विद्यार्थी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. सो इंडिविजुअल पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीपल दैट डिटरमाइन व्हाट लर्निंग आउटकम रिजल्ट्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट पीपल माइट हैव. टू पीपल would be affected differently by identical learning experiences as they differ in their ability, interest and values. So इस प्रकार जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर टीचर इफेक्टिवनेस को समझने की आवश्यकता है. नेक्स्ट जो अभी चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं टू टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. मैं बात शुरू से अभी तक कर रहा हूँ, प्रथम पार्ट में भी किया, द्वितीय पार्ट में भी चर्चा कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना निहायत आवश्यक है. यानी कि अगर आप बेहतर आउटकम चाहते हैं तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें. अब बात उठती है कि ऐसे शिक्षक जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसको कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनके द्वारा वो अवरोध पैदा करता है और टीचर जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं. उस बैरियर्स की चर्चा एक एक करके यहाँ पे मैं करने चाह रहा हूँ. ध्यान से सुनिए. पहला बैरियर है डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशन. एक शिक्षक प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाता है जब उसके पास ओवर क्राउडेड क्लासरूम रहेगा. बहुत बड़ा लार्ज क्लासरूम है, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाता है. लैक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल. ठीक है, जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल कम होगा तो भी अवरोध पैदा करेगा. लो स्टेटस, शिक्षक का स्टेटस लो है, वो नहीं कर पा रहा है. इरेगुलर सैलरी, पैसे की अभाव है तो नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो ये चार बातें मैं डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत रखा हूँ. सेकंड है पुअरली डिज़ाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स, बोथ प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्सेज. प्री सर्विस कोर्सेज में भी सिखाया जाता है शिक्षकों को कि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें.
लेकिन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज के जो डिज़ाइन है, कोर्स डिज़ाइन किया गया है, वो थोड़ा सही नहीं किया गया, जिस कारण से प्री सर्विस में, इन सर्विस में शिक्षक नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या आवश्यक है, क्यों करने की आवश्यकता है, वो उस पर ज़्यादा बल नहीं देते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक्स है, बैरियर्स है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर नॉट क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट शिक्षक को करना चाहिए, अब कोई शिक्षक नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि उसके मेन उद्देश्य को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, उसकी क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले प्री सर्विस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाए कि इसकी क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म लैकिंग। ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोई किए जा रहा है लेकिन उसके पास कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है कि भाई आप तुम कर रहे हो तो ये फ़ायदा तुमको मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है वो वही है, जो कर रहा है वो वही है। यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म होने से शिक्षक को बीच बीच में अगर फीडबैक मिलते रहे तो शिक्षक और ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। सो हमारे समाज में निगेटिविटी ज़्यादा है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जब कोई करने जाता है तो उसको रोका जाता है बाय डिफरेंट वे। सो अगर फीडबैक मैकेनिज्म उसके एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा दिया जाए पॉजिटिव सेंस में, तो डेफिनेटली टीचर्स जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेंगे। और इसमें क्या क्या बैरियर्स हैं? नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द टीचर। कुछ शिक्षक के नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं रिगार्डिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको पॉजिटिविटी में लाना होगा। इसकी चर्चा मैंने अभी किया। लैक ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड दिस प्रोफेशन। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक तो बन जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक अपना डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से प्रॉपर आउटकम्स नहीं निकल पे आ रहे हैं। बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी कि डेडिकेशन नहीं है शिक्षक का। अगर डेडिकेशन आएगा कहाँ से आएगा? जब बच्चे शिक्षक जब बीच बीच में प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स करेंगे तो वो रिचार्ज हो जाएंगे, वो रिचार्ज होंगे तो बच्चे रिचार्ज होंगे, बच्चे रिचार्ज होंगे तो बच्चे का आउटकम्स अच्छा होगा। सो मुझे डेडिकेशन इसके सुधारना होगा। नेक्स्ट बैरियर आता है ट्रेडिशनल करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। हमारे यहाँ करिकुलम आज भी ट्रेडिशनल बना हुआ है, हमारे यहाँ मेथड ऑफ टीचिंग आज भी ट्रेडिशनल बना हुआ है, उसको सुधारना होगा। इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग कहाँ से सीखेंगे? कोई अगर 20 साल पहले ट्रेनिंग लिया है वो नया अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग नहीं जान रहे हैं, नया वो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं जान रहे, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग नहीं जान रहे हैं। तो नया नया जो अप्रोचेज मेथड्स आए हुए हैं, टेक्निक्स आए हुए हैं, वो कहाँ से सीखेंगे? जब तक वो इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, तब तक वो उसका ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हट पाएंगे। सो बैरियर्स ये सब हो जाते हैं। सो लैक ऑफ ICT स्किल्स ऑल्सो। इसके अलावा भी बहुत सारे बैरियर्स हैं। आप इतना बैरियर को निश्चित ना करें, और भी आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब बात निकल के आता है कि आखिर कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिस कारण से हम स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग टीचर्स कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजी आप लगाएंगे जिससे कि टीचर कॉम्पिटेंसी अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए और क्वालिटी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हो जाए, इसके संदर्भ में चर्चा अभी मैं करता हूँ। So in the teaching learning process, teacher competencies and quality of instruction given are the key necessary input in education process. To attain the desired quality and standard in the education sector, teacher competency and the quality of instruction to be high standard. अगर इसको मुझे क्या करना होगा कि क्वालिटी मुझे चाहिए तो टीचर कॉम्पिटेंसीज को आपको सुधारना पड़ेगा। जो 10 कॉम्पिटेंसीज की चर्चा मैंने किया है फर्स्ट पार्ट में, और क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको सुधारना होगा। देखिएगा आपका सुधर जाएगा। मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ किस प्रकार आप क्वालिटी ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ला सकते हैं। To enhance teacher competency and quality of classroom instruction, the strategy are as follows. कैसे होगा? पहला, क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा और बीच बीच में मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा।
There should be close monitoring of what happens in the classroom between the teacher and the student. So मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जासूसी करना है, बट क्लोज मॉनिटरिंग होना है कि क्या चल रहा है क्लासरूम में, टीचर्स के बीच और विद्यार्थियों के बीच क्या बातें हो रही है. सो क्लोज मॉनिटरिंग होना है. So when this is done by the right people, the issues of quality will be controlled. It will also help to enhance, ensure that the system doesn't deviate from the set goal. अगर आप बीच बीच में क्लोज मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो क्या फायदा होगा, जो उद्देश्य से शिक्षक जा रहे हैं कक्षा में पढ़ाने के लिए वो समय अनियंत्र ना व्यर्थ करते, जो मेन बिंदु में जो फोकस करना है उस पर वो फोकस करेंगे. So inspection of the school should be regular and consistent, coherent and complementary. So भी आप में यहाँ एक बात समझ लीजिए कि inspection is required. If inspection is regularly done, definitely the quality will be enhanced. Next is assessment and evaluation measure. No doubt असेसमेंट इज रिक्वायर्ड. आउटकम तभी सुधरेगा जब शिक्षक देखेंगे कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कितना सीख रहे हैं. सो दिस विल हेल्प टू ब्रिंग कंटिन्यूअस फीडबैक फ्रॉम द क्लासरूम एंड इनेबल प्रैक्टिशनर एंड प्रोग्राम executor know what is happening in the field and equally checkmate teachers performance and quality of the instruction. सो अगर आपको सुधार लानी है सो असेसमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, एवैल्यूएशन की भी रिक्वायरमेंट है. इस कारण से आप स्ट्रैटेजी अपनाने से आपका सुधर जाएगा. इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, मैं अभी चर्चा भी किया कि प्री सर्विस ट्रेनिंग के साथ साथ इन सर्विस ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है. जो शिक्षक ट्रेनिंग लिए हैं अगर उन्हें बीच बीच में हर 3 साल पे अगर इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है, नो डाउट वो न्यू मेथड सीखेंगे, न्यू स्ट्रैटेजी सीखेंगे और वो अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे, आपका वो सुधर जाएगा आउटकम. सो टीचर हु आर ऑलरेडी इन द फील्ड शुड बी मेड टू अंडरगो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम. फॉर व्हाट? टू अपडेट देयर नॉलेज. द अनक्वालिफाइड टीचर particularly in the private sector of the education system should compulsory undergo the training if we are talking of enhancing quality and competence of the teacher in the classroom. So for a teacher in service training is required. Reduction of class size. जैसा आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ratio of the teacher and the student is quite large, but if you'll check this ratio, if it is 1:30, definitely all the approaches, all the method, all the technique which you are going to apply on the students, it will be fruitful. The outcome will be good. The outcome, the student will be more, the student will listen effectively in the classroom. So the size should be reduced to the ratio 1:30 as stipulated by the policy of the education. Next strategy is enhancing teachers' welfare. Teachers' welfare needs should be enhanced. This will help to boost the status of teacher and the teaching profession. Their salary and allowance should be paid regularly and fund need to be made available to attract capable hand into the profession. So if you will provide a handsome salary and timely salary to the teachers, definitely it will be help out for a quality purpose. Adequate provision of instructional aid. Definitely all the instructional aid, all the ICT should be available frequently, easily available, accessible. If it is available, certainly the teacher will utilize all these resources in the classroom, and if all the resources will be utilized in this classroom, you can see the teacher's effectiveness and the outcome will be enhanced. So today we have discussed various topics. We have started from the teacher effectiveness, we have discussed the barriers, we have discussed the strategy for improving teachers' competencies and the quality of classroom instruction. No doubt this video will help you in your teacher education paper. So dear students, you
Go through the video properly. If you find any difficulty, any query, you can ask me in WhatsApp by messaging. I think you have gone through very carefully. So thank you for being with me and by patiently listening to me. Once again, thank you everyone.